अंदर से सपोर्ट मिलता था उनकी तरफ से। और जब तक कोई मेरा माँ नहीं कहते ना तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, मैं कभी गलत नहीं मानती उस चीज़ को। दुनिया वाले जो भी कहे, दुनिया वाला बाहर में जाओ। Be the pillar of support is your mother in your life. टाइप को डिज़ाइन किया अरुणाचल से निकाल के। और 2018 में मेरा ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आई जो कि हर इंसान उस वक्त हार जाते थे। भूत को एक्सपीरियंस किए, स्पिरिट को, जब आप कहीं जा रही हो, कहीं से कभी लेट नाइट आए, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, बिकॉज आपके पास वो एनर्जी है। यस, एक मोटो होता है तो मैं कौन होती हूँ कि आपका लाइफ के बारे में बोलने वाला। तो अपना लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचे, दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचे, क्योंकि जब दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचेंगे ना, अपने बारे में कब सोचेंगे। सो हाउ मेनी रोल्स अ पर्सन कैन play in one life? When I say role, I'm talking about different kind of professionalism, different kind of occupation. How many of that we can achieve in one life, in one aspect at one point in time? Me as a person, if I'm a working person, I just go to my office, come back, take rest, and then that's how I live my life. But what if I tell you that a person, a single person who is in a role of different professional aspect, a tarot reader, astrologer, a gym instructor, a yoga teacher, a fitness freak, a model, what not? If I tell you that I have one person as a guest in my show, so I would say that allow me to reintroduce myself. My name is Mr. Gray. Put your hands up in the air and allow me to introduce my guest, Ayun. Yeah. Hi Ayun. Hi, Welcome to hello. my show, Gossip with Gray. How are you? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल द Yeah. इनवाइटिंग टू मी। मुझे यहाँ आपने बुलाया जी। एंड रेस्पेक्ट किया, सो थैंक यू सो मच। I just want to say that I have been looking at your wardrobe. आप जब से आए हैं, आपने एक बहुत ही कल्चरल फ्रेंडली एक एसएमएस कुछ पहना हुआ है, तो वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योर wardrobe? What are you wearing? Actually, this dress, this attire is a mekhela It's a dress sadar. or a sari? What do you call This it? is called mekhela sadar. Mekhela? Sadar. Sadar. Yeah, this lower part is a mekhela. Mekhela. And this upper part is a sadar. Sadar. This content is a mekhela sadar. Mekhela sadar. Yeah. Okay, and it's a traditional Yeah, traditional Assamese dress. mekhela sadar, yeah. Okay, and you have teamed up with I could see a beautiful bangle, good accessories, and there is a neck piece over there. Yes. So you're looking really pretty, and you're looking very. You're actually depicting your own culture from Assam, Yeah, and thank I'm you. sure people out there who are watching you from your hometown, from the city exactly. of Assam, they're gonna love this for deriving that culture. So thank you so much. So Ayun, right? How do Yes. you? What is the spelling of your name? AYUN. 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 And what does it mean? आयुन का मीनिंग्स होता है, यहाँ पे बहुत सारा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आँखें को दर्शाते हैं, Eyes को, आपकी आँखों को, okay. आँखों को दर्शाता है। उसके बाद उस जो लोगों के साथ जो एक हम इसे बोल सकता है कि लोगों के साथ मिलजुल के रहता, अच्छा। रहना को ही आयुन Ayun बोलते हैं, मतलब एक bonding. यस। Ah, तो so- इसको कहते हैं So आयुन। which language it is? Actually, this I'm an original Singpho. This is Singpho is come from Kachin State, Kachin State. border Myanmar and China. It's between the state is a Kachin. Okay. Actually, I'm a Singpho originally, and this is the part of the बोल सकता है China. Part of the China. All right. Okay. But it's part of India only. Yeah, right? now India, but मेरा जो खून है वो हाँ. Singpho खून है, वो एक चाइनीज का खून बोल बोल सकते सकते हैं। हो. So your ancestor are from Yes, my China. You can ancestor say is a Chinese. China. Yeah. All right. Then you got you came here in that Yeah, border, my and then you my migrated. grandfather, my grandparents come Okay. here in the India. Okay. So this is a long story. Have you ever उसके been बारे में- to your ancestors' place? Have you ever? No, No. right? So the roots were like years ago, right? Yes, many बहुत years सालों ago, पहले सब ये चीज़ है। हो गया था. But आप ये कह सकते हो the blood is ब्लड, हाँ ब्लड बोल सकता है कि मेरा वो चाइनीज ब्लड है, बट मैं आई एम द प्रॉपर इंडियन है। proper Indian you are, of course. भारत महान, Yeah. of course. So ये तो हुई आपके नाम और आपके पहनावे के ऊपर जो बात है, लेकिन अभी मैं जो इंट्रोडक्शन आपके बारे में दे रहा था, you are a girl with multiple professional aspects which you follow, and you are in multiple professional Yeah. themes right now. तो कितने टाइप के काम आप करते हो?
हाँ, तो मैं आप हमें बताते जाएं, मैं Yes, थोड़ा sure. काउंट करता जाता हूँ मैं अपने ऑडियंस के लिए। शुरुआत करते हैं, आप क्या हो, आप अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल में आने से पहले एक ऐसा चीज़ को बताना चाहूँगी कि इस प्रोफेशनल में आने के लिए ना मैंने एक्चुअली सपने में ऐसा कुछ होता है ना, हमारा इंसान जब जब बर्थ होता है, जब इस दुनिया में आते हैं, इस धरती में ना, को बहुत लोगों को क्या होता है कि अच्छा घर में जन्म लेता है, कोई बहुत लोअर क्लास में जन्म लेता है, कोई मिडिल क्लास में, सबका अलग अलग होता है तो मैं उस फैमिली में जन्म लिया था जहाँ पे हम उसे हाई क्लास नहीं बोल सकते तो हमने तकलीफ़ें बचपन से देखी थी। एंड मेरा पापा व्हेन आई वाज 3 years old, मैं जब 3 साल की थी पापा गुजर गए थे। तो हमने अपना जो और कितने भाई बहन हैं आप? वी आर द 7 sister now and 7 sister and 1 So, brother. 1 brother, total Yes, 8. total sibling is now 8 siblings. तो हम उस व्हेन आई वाज द 3, मैं सबसे छोटी हूँ घर का। तो जब मैं बहुत बचपन में पापा को खो रही थी, सो आप जान सकते हैं जिसका कोई नहीं होता है तो उनका क्या हरी होता है, Struggle बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रगलिंग ज़्यादा होता Right. है। तो तब से मेरा जो बचपन इतना अच्छा नहीं गया। राइट। कुछ ना कुछ कमी रहते थी लाइफ में। तो आपको जो सपोर्ट आपकी मदर ने हाँ, बहुत थ्रू आउट किया? मेरा सबसे सपोर्ट तो मेरा माँ ने ही मुझे सपोर्ट किया था। एंड सीरियसली मेरा माँ ने अपना लाइफ को भी सेक्रीफाइस किया। व्हेन शी वाज विडो, जब उनका विधवा हुआ था तो वो लगभग 40 या 45 एज, बहुत यंग एज में उनका विधवा हो गई थी। पर उन्होंने फाइट की हमारे लिए, उन्होंने कभी सेकंड मैरिज नहीं किया था हमारे लिए। She dedicated her life to you guys. मैं अपना माँ के लिए मैं हमेशा थैंक्सफुल रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं बाहर निकलती हूँ एंड वो हमेशा बोलते हैं कि तुम जीत के आओगे। मैं फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं मिल सकता है, बट एंड हमेशा एक अंदर से सपोर्ट मिलता था उनकी तरफ से। और जब तक कोई मेरा माँ नहीं कहते ना तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, मैं कभी गलत नहीं मानती उस चीज़ को। दुनिया वाले जो भी कहे, दुनिया वाला बाहर में जाओ, लेकिन मैं मेरा सुनती हूँ और मामी का सुनती हूँ। आज की डेट में भी आज अपनी माँ की सुनते हो? सुनती हूँ मैं पूरा। और पूरा मैं माँ, अभी मेरा माँ को मैंने लॉस किया था 2020 में। ओह, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। पर मैं सुनती हूँ, मैं आंखें बंद करके हूँ, माँ को फील करती हूँ, दैट्स इट। और माँ का कुछ गाइडेंस है जो आज भी मैं फॉलो करती हूँ। आज भी द पिलर ऑफ सपोर्ट इज़ योर मदर इन योर लाइफ। यस, एग्जैक्टली। अगर वो फिजिकली नहीं है बट वर्चुअली शी इज़ Yes. ऑलवेज विद यू यस, एग्जैक्टली। एंड यू आर कनेक्टेड टू हर। यस। सो मैं आपसे पूछ रहा था, ये आपका जो बचपन रहा बहुत स्ट्रगल में रहा है, बहुत डेफिनेटली मैं उस वाले पॉइंट में आऊँगा, उसके बारे में पूछूंगा। मैं आपसे पूछ रहा था कि कितने अच्छा, हाँ, प्रोफेशन है आपके? हाँ, मेरा बहुत कुछ है। अभी मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से बताइए आप। स्टार्टिंग में बताऊंगी कि मैं एक 2016 से मैं योगा सिखाना शुरू किया था। आप एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं, दैट्स वन। 2018 में मैंने अपना न्यूट्रिशन कोच बन गया। तो न्यूट्रिशन कोच मुझे लगा कि योगा के साथ मतलब खाना बहुत ज़रूरी होता था। जब मैं नया आई थी इस लाइन में, योगा लाइन में, तो जब कोई मतलब सीखने आते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं मैम खाने में क्या क्या खाऊं। तो मेरा कुछ नॉलेज नहीं था कि इसके बारे में मतलब कौन सा खाना आपने लर्न किया है, प्रॉपर सर्टिफिकेशन की है, देन यू बिकम अ इंस्ट्रक्टर? यस, एक्चुअली जब मुझे ये पता चला कि न्यूट्रिशन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब हमारा एक्सरसाइज के साथ, तो मैंने इसे सीखना शुरू किया। So, आज के डेट में आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, योगा टीचर भी है, उसके बाद बताइए और क्या है? हाँ, उसके बाद मैंने अपना लाइफ को एक सपना होता है इंसान का कि कुछ करे किसी के लिए। करेक्ट। तो मैंने एक दिन अचानक से मेरा ये आई, तो मुझे लगा मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, लोगों के बारे में जानना है। ठीक है, तो मैं बन गई एस्ट्रोलॉजर। तो तुमने उसके बारे में R&D स्टार्ट किया, उसके बारे में लर्न करना शुरू किया, और फिर उसके बारे में और ज़्यादा सर्टिफिकेशन किया, प्रोफेशनली उसको फॉलो किया। मैंने 2021 में मैंने कोर्स किया था एस्ट्रोलॉजर के साथ। मतलब मुझे एक और एड आया उसी पे टेरो रीडिंग का, तो मुझे मतलब वो कार्ड में लोग बताते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे एक कार्ड से इंसान का पूरा जीवन बता सकता है, एक कार्ड निकाल के।
तो मुझे लगा नहीं, मुझे ये भी सीखना है। तो वो एक्चुअली भी आप मेरा सीखे लर्निंग आप? स्किल बहुत अच्छा है, तो मैंने वो भी सीख लिया। ऐसे मैं सर्टिफाई हूँ ऑन एस्ट्रोलॉजर एंड टेरो रीडर का। उसके बाद जो उसी पे जाते हुए एक और कंसेप्ट आया हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन नाम से। तो ये पास्ट लाइफ Past क्या होता है, life पास्ट regre- लाइफ रिग्रेशन का। तो ये पास्ट लाइफ क्या, तो लोग पास में जाकर अपना आइडेंटिटी ढूंढते थे कि मैं कौन थी पिछले जन्म, मतलब पिछले जन्म, इस जन्म मिलने से पहले मैं कहाँ से आई थी, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ थी और क्यों मेरा ये सब। तो मैंने वो कोर्स स्टार्ट कर लिया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मैंने ज्वाइन कर लिया। देन उसके बाद मुझे लगा, और लोगों को ना बहुत नज़र लगते थे, तो मैंने तब भी मुझे लगा नहीं इसको भी सीखना है। तो मैंने रेकी, मतलब जो आप सभी को पता है आज का सो लाइफ में जो रेकी, तो मुझे लगा कि मुझे रेकी मास्टर बनना है, रेकी सीखना है, रेकी से हील करना है, लोगों को मदद करना है। तो मैंने रेकी सीख लिया। देन उसके बाद मुझे लगा, तो एक दिन मुझे अचानक से ये आए कि लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, तो मुझे लगा मुझे ये भी सीखना है। तो मैंने हिप्नोथेरापिस्ट ज्वाइन कर लिया एज अ पार्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट, कि लोगों को मैं काउंसलिंग कर सकूँ, लोगों को जो स्टक होता है, जो इंसान रिलेशनशिप में स्टक हो चुका है या कोई कहीं हर तरीके से जो स्टकनेस आ जाता है जीवन में, उसे हम कैसे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने वो भी सीख लिया। तो नाउ मैं उसके बाद लाइफ का ना 2018 का बात बता रही हूँ अभी, वो मैं धीरे धीरे मेरा यहाँ पे आ रही हूँ। तो 2018 में एक मैंने शो अटेंड किया था, वहाँ पे मिस्टर मिसेस एंड किड्स पेजेंट था वो। हाँ, पेजेंट शो था। तो वहाँ पे क्राउनिंग होता था तो मुझे भी लगा अरे यार काश मेरे होते हैं, व्हेन आई वाज 21 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे भी लगा था कि अरे यार क्राउनिंग सबके सामने अंदर से ना वो एक फीलिंग है। तो नेक्स्ट सेकंड मिस मार्गरिटा में वो आए, तो मैंने वहाँ पे रजिस्टर करा। वहाँ पे बेशक मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि मुझे कुछ अरे नहीं था, तब से मेरा एक सपना बन गई थी। तो मैं, आप एक मॉडल भी हैं? हाँ, यस एग्जैक्टली, एज अ मॉडल। तो मॉडल के हिसाब से मैं इंट्रोड्यूस करके ना मुझे बहुत खुशी होता है। आई एम ए मिस नोएडा 2023 विनर बोल गए। तो ये एक इंसान, थैंक यू सो मच। और जब सेकंड ये है कि मॉडलिंग लाइन में जाकर मुझे ये कंसेप्ट समझ में आया कि व्हाट इज़ द फैशन। हर इंसान का अंदर में एक फैशन होना भी ज़रूरी है। एंड आई मस्ट से दैट हमारी ऑडियंस आपके फैशन सेंस से तो बहुत खुश है कि आपने तो काफ़ी अच्छा अपने आप को कैरी करा है। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ ना, मुझे थोड़ा अलग दिखे और यूनिक और बेस्ट दिखे। यस, ये मेरा पहले से। आई थिंक दो चीज़ें आपने ऐड ऑन नहीं करी है। एक तो न्यूमरोलॉजी भी आपने ऐड नहीं करी है। न्यूमरोलॉजी मैं तो भूल ही गई। एग्जैक्टली, इतने प्रोफेशन है मुझे बताना पड़ रहा है। और दूसरा आपने मुझे वास्तु नहीं ऐड किया। यस, न्यूमरोलॉजी वास्तु कहते हैं उसे, जो कि मुझे लगा थी जब मैं क्लाइंट में एस्ट्रोटॉक ऐप में भी हूँ, एस्ट्रोसेस ऐप्स में भी हूँ। जब एस्ट्रोटॉक में जब लोग पूछते हैं ना मैम हमारा ये है, तो मुझे लगा कि मेरा घर में क्या कौन सा रखना है। तो मुझे लगा अरे यार ये तो मैंने सीखा ही नहीं एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो मैंने नुम्रो वास्तु को सीख लिया कि ये भी बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, क्योंकि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, हम जिस घर में रहते हैं उस घर को सही दिशा में, सही जगह में फिट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इसलिए इसको भी अपना लिया। ये सारे प्रोफेशंस आपने, मतलब इन योर लाइफ द चेंजेस स्टार्टेड कमिंग I think 2018 onwards. 2018, yeah. That was the turning year for you, right? Yes, 2018. उसके बाद से आपने अंदर इतने स्किल्स को इनहेरिट किया, इतने स्किल्स को इनहेरिट किया कि आज भी, जैसे अभी आपने बोला दैट आई एम अ वेरी गुड लर्नर, ये अभी आपने अपने आप को बोला, जो मैं बिल्कुल सहमत करता हूँ उस बात से। क्योंकि एक इंसान को अगर किसी चीज़ को सीखने की जो इच्छा होती है, अगर वो रहे, तो आई थिंक एज इज़ जस्ट द नंबर। उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने यंग हो और कितने ओल्ड हो। Exactly. अगर आपको सीखना है तो फिर आपको सीखना है। और एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू द टेक्नोलॉजी नाउअडेज, क्योंकि घर बैठ के आजकल आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। यू कैन रेफर टू द वीडियोज़, यू कैन रेफर टू द पॉडकास्ट, यू कैन रेफर टू द एक्सपीरियंसेस विच पीपल हैव शेयर्ड ऑनलाइन। तो इससे आप खुद बहुत लर्न कर सकते हैं। आई एम सो हैप्पी that I am talking to a person who is like established herself in her own will and in her own grounds. किसी का सपोर्ट के बिना यहाँ तक पहुँचना, तो शुरुआत करते हैं कि बहुत इजी तो नहीं होगा। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि चाइल्डहुड बहुत ट्रबल्ड रहा आपका, बिकॉज फादर नहीं थे, मदर ने अकेले देखा, और 7 बच्चे और आपके साथ थे। तो स्कूलिंग सब आपने असम से ही करी?
ये एक्चुअली मैं जब पढ़ी थे तो मामा अकेले थी, तो मुझे क्या किया गया मम्मी ने कि जब मैं सोती थी तो मुझे अरुणाचल भेज दिया, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए मासी के पास। मासी के पास? अच्छा, हाँ, तो इसलिए मैं अपना बचपन को ना मैं ज़्यादा याद भी नहीं करती अच्छा, सो यू डिडंट हैड अ गुड एक्सपीरियंस देयर? हाँ, तो एक्चुअली कभी कभी होता है ना कि मेरा मम्मी को कहना था कि मतलब हमारा अरुणाचल में क्या होता था कि हम लोग का जो ये होता है ना, तो ट्राइब होता है, ये द हिल्स ट्राइब। तो क्या होता था वहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब मतलब जैसे कि एजुकेशन में ना थोड़ा सा हेरी हो जाता है, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता था अरुणाचल में। अच्छा, फ्री ऑफ अच्छा। कोर्स एजुकेशन मिलता था, मिलता। तो गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने मासी वहाँ पे मेरा अपना मासी वहाँ पे मेरा अरुणाचल में भी पेरेंट्स बन गई फ्री ऑफ कोर्स, एंड वहाँ पे अच्छा। तो वहाँ पे मेरा अपना स्टडी स्टार्ट किया था। अरुणाचल में मेरा स्टडी हुई थी एंड क्लास 10 तक मैंने वहाँ पे की। वहाँ से फिर बाहर निकल के आ गई मैं असम गुवाहाटी। और असम गुवाहाटी में आके आपने अपने अपना लाइफ 12th को, किया, हाँ, मैंने फिर अपना आपने लाइफ ग्रेजुएशन को किया। मैंने अपना लाइफ को डिज़ाइन किया अरुणाचल से निकाल के। और 2018 में मेरा ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आई जो कि हर इंसान उस वक्त हार जाते थे, लेकिन अगर आपका सपना, अगर आपका ड्रीम्स अगर स्ट्रॉन्ग होता है ना, आपका गोल, तो वो कभी हरा नहीं सकते आपका अंतर को। तो उस टर्निंग पॉइंट को मैं हर किसी के साथ मैं शेयर करना पसंद करती हूँ। जो कि मेरा मनी सपोर्ट तो बिल्कुल था नहीं था, नहीं है बोल सकता है। तो मैं अपना पार्ट टाइम करते थे, अपना पार्ट टाइम बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुई थी 2016 में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ। तो मैंने वहाँ पे पार्ट टाइम किया था एंड मैं कभी घर में परेशान नहीं करती, क्योंकि व्हेन आई वाज आपने जो किया अपने लिए खुद स्टैंड लेके हाँ। किया, चाहे वो छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो, Yes. बट आपने कभी शर्म नहीं करी कि यार ये मैं नहीं करूँगी या मैं वही करूँगी जो मेरे लेवल का होगा, ऐसा कभी आपने ऐसा नहीं कभी सोचा? नहीं। मुझे लगता था कि मैं मम्मी को थोड़ा सपोर्ट करूं, कि मम्मी को परेशान ना करूं। और जब भी मैं स्कूलिंग में भी थी, जब अरुणाचल से कब मैं आया तो मम्मी के साथ मम्मी जो करते थे मार्केटिंग बाज़ार वगैरह, मम्मी सब्जियाँ का दुकान थी मम्मी का, तो मैं वहाँ पे बेच भी जाती थी तो उनको भी आप फिजिकली भी सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियली भी आप थोड़ा सपोर्ट करने की और कोशिश मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ मेरा मम्मी से। एंड तो मेरा क्या होता था 2018 में ऐसा एक वक्त आया कि मेरा हाथ में 1 रुपया भी नहीं था उस दिन। और मेरा जो काम है, जो मैंने बिज़नेस लिया था, तो उसमें भी ऐसा ही हो गई थी कि पैसा नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं मतलब किसी को मैं मांगती नहीं हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मैं किसी को मांगना मुझे पसंद नहीं है। चाहे मैं भूखा रह जाऊँ, लेकिन किसी का हाथ नहीं फैलाऊंगी किसी का आगे। मेरा ये तब से एटीट्यूड था, मेरा मम्मी ने यही सिखाया था, कभी आगे नहीं किसी के सामने फैलाना, हाथ हाथ नहीं फैलाना है। तो मैं क्या करूँ, मम्मी को मैं फ़ोन नहीं कर सकती और मैं परेशान नहीं करना चाहती। तो मेरे पास 10 रुपीज़ थे, मैंने 10 रुपीज़ का एक मैरीगोल्ड का बिस्किट एक पैकेट ले लिया। तो उस बिस्किट को लेकर अगर मैं उस चीज़ को कहूँ, कोई भी बिलीव नहीं करेंगे। और आज भी मुझे लगता है कि हर इंसान को ना ये सेक्रीफाइस तो करना ही होता है लाइफ में, कभी ना कभी। लेकिन मैं उस दिन ना हार के मैं घर जा सकता था। मेरा घर में तो खा सकती हूँ पैसे जो भी है, अच्छा हो गए थे तब तक। 2018 तक तो हमारा फाइनेंशियल बहुत अच्छा हुए थे घर में। ऐसा नहीं है कि मेरा मम्मी ने थोड़ा टैलेंट थी, और टी गार्डन किसी को, हमारा जो ज़मीन थे, खाली ज़मीन पड़ा था, तो मम्मी ने उसे दे दिया था पहले से ही, तो उन्होंने टी गार्डन करा दिया था। टी गार्डन से हमारा जो भी है हो रहा था। वो थोड़ा सिचुएशन सही हो गया। हाँ, सिचुएशन चाहिए। अगर मैं कम ना बाहर ना भी निकली, लेकिन बचपन से मैंने वो नीडेड देखा है ना। मैं वापस ले जाना चाहूँगा, सॉरी, जो वो दिन था, हाँ। जिस दिन आपके पास 10 रुपए थे, हाँ। और आपने वो एक पैकेट खरीदा बिस्किट का, मैरीगोल्ड का। एग्जैक्टली। वो जब आपके हाथ में वो 10 रुपए का पैकेट था बिस्किट का, मन में क्या थॉट चल रहा था? क्या उस मतलब व्हाट वर यू थिंकिंग? मतलब हाँ, वो उस बिस्किट का वक्त- पैकेट, भूखा पेट, यस। 1 रुपया आपके हाथ में नहीं था, घर आप वापस जाना नहीं चाहती थी, बिजनेस एमवे का अच्छा नहीं चल रहा था, हर्बल लाइफ वॉट एवर इट वॉज, वो नहीं चल रहा था। उस टाइम पे किस चीज़ ने आपको सपोर्ट किया? कौन सा मेंटल स्टेट था जो आप उस स्ट्रॉन्ग वक्त बने? हाँ, एग्जैक्टली। और जब मैंने अपने हाथ में वो बिस्किट का पैकेट लिया, जी। तो मुझे कम से कम मैं आज खाऊंगी या कल खाऊंगी, 2 दिन या 3 दिन मेरा चलेंगे, ठीक है। वो एक पैकेट बिस्किट पैकेट को बिस्किट 2 से 3 दिन आपको चलाना होगा, ठीक है। तो मैं सोच रही थी क्या मुझे अभी Which year was that? Sorry. on 2018 I'm 21 years old.
मैं तो ये 2018 के बता रहे हो आप? हाँ, 2018 जो का आपका बात टर्निंग हो रही- पॉइंट है। हाँ। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। तब मैं 21 साल की थी, तो मैंने हाथ में ऐसा पकड़ा उसको, तो मुझे क्या करना है इस वक्त? मुझे घर जाना है या मुझे लाइफ को आगे लेके जाना है या मुझे यहाँ पे स्टॉप होकर ख़त्म करना है? मैं समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने बहुत देर तक देखा, चलो जो होगा देखा ही जाएगा, आज का दिन तो मेरा निकाल ही जाए। तो मैंने क्या किया, इसे ना मैं 2-3 दिन तक चलाऊँगी, ठीक है। तो मेरा एक ही, मेरा जो सपना है, मेरा जो ड्रीम है एक बड़ा इंसान बनने का, अगर मैं आज इसी एक मतलब थोड़ा सा तकलीफ़ के लिए अगर मैं घर वापस गए तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। मेरा थॉट वही आया कि कि आपका मैं ड्रीम फेल नहीं बड़ा होना है, चाहती, मुझे अपने ड्रीम को फॉलो करना है, बट हाँ, मैं वापस नहीं जाऊँ। नहीं जाना है, क्योंकि मेरा सपना बड़ा है, मेरा भूख से ज़्यादा। मैंने यही खुद को रिपीट किया कि मेरा सपना सबसे आगे है, कि मेरा पेट खाली पेट से ज़्यादा। देन मैंने वो You want to have some water? हाँ, I can see that your eyes are getting teary. Can I have some water, please? नहीं आई एम ओके। वो bottle. इसलिए बताना चाहूँगी, इंसान को कभी हारना नहीं है, Right. जितना भी बैड सिचुएशन क्यों ना हो ना, ये थोड़ा टाइम के लिए आता है हर जीवन में। Okay. सो आई एम ओके नाउ। ये मेरा टर्निंग पॉइंट, और मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, तो मुझे लगा कि आगे बढ़ने के लिए, लोग आपको जानने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, सीखना ज़रूरी है। इफ़ यू हैव द अलॉट ऑफ द स्किल, देन आप बहुत आगे जा सकते। अगर आपके पास स्किल नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो आपने पहला स्किल क्या स्टार्ट किया? तो मैंने वही अपना जो मैंने न्यूट्रिशन का जो किया था, तो मैंने फिर अपना खुद का फिटनेस सेंटर स्टार्ट किया 2018 में, अपना जगह में मार्गेरिटा में। ओके। या मैंने सीखा, तो मुझे लगा, और आपको पता है मैंने स्टार्ट किया था ओनली फॉर 10,000 से। अच्छा। अपना सेंटर मेरा बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था ओनली 10,000। लोग कहते हैं पैसा बहुत ज़रूरी है बिजनेस करने के लिए, बट मैं कहना चाहूँगी नहीं चाहिए। अगर आपका पास साहस है ना, आपके पास वो साहस है, बिलीव है अपने आप पर ना, कॉन्फिडेंस है, ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा पैसों की पैसे की इतना ज़रूरत नहीं है। Confidence ज़्यादा matter करता वेरी है। इंपॉर्टेंट। आपका अपने अंदर का बिलीव को, अपने खुद का अंदर का जानना पहचानना, ये बहुत ज़रूरी होता है। Right. तो यही दिन मेरा सही अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। पर 2020 में और एक टर्निंग पॉइंट आए, कोरोना। जीवन का सबसे खतरनाक वाला भी आप बोल सकता है, जो कि मैंने सब कुछ खो दिया अगेन 2018 टू 2020, 2 साल मेरा बहुत अच्छा गई। मैं 2018 में मैं बैंकॉक भी जाके आई, एंड सो मैं राजस्थान भी जाके आई। लॉट्स ऑफ You मैंने were traveling, you were expanding yourself, you were expanding your business, and you Yes. were very much busy with your passion, क्योंकि Yes. कुछ सीखा, उसको implement करा। इम्प्लीमेंट किया। तो 2020 में क्या हुआ, सबसे पहले तो क्या हुआ था, फिटनेस सेंटर को ही बंद किया था सरकार ने। Yes, और सबसे I still remember fitness center, the gyms were the last entity to get opened, क्योंकि सारी चीज़ें ओपन हो गई थी, बट जिम को उन्होंने ओपन नहीं करा था। बोला था कि जिम से कंटेनमेंट ज़्यादा बनती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा ये फैल जाता है, आप क्योंकि वेट पकड़ा हुआ आप पकड़ोगे तो आपको भी फैल जाएगा, तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस पॉइंट है। तो जिम सबसे लास्ट में जाके स्टार्ट हुआ था। सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से। तो 2020 में वो सारी चीज़ें दोबारा से ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा मम्मी बीमार हो गए, मेरा मम्मी का थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, और उसका कोन ऑपरेशन हुआ था पाँव के नीचे में। तो वहाँ कहीं ना कहीं उसका जो प्रेशर पॉइंट में ना थोड़ा इन्फेक्ट पड़ा था, एंड अंदर ही अंदर उसका ब्लड सूखने लगा था। एंड मेरा मम्मी का 17 अप्रैल को मेरा मम्मी का देहांत हुआ था। तब मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। जब मेरा मम्मी एक पिलर था, एक सपोर्टर था, जैसे भी हो वो हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए बोलते थे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सबसे बड़ा पॉइंट वही वर्ड होता है इंसान का, मनी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो मैं तुम्हारा साथ हूँ। अगर कोई भी आज भी कहते हैं ना मैं तुम्हारा साथ हूँ, तुम मत डरो आगे जाओ, तो इंसान ना बहुत आगे चले जाते हैं। तो इसलिए जब 2020 में मेरा माँ गुजर गई, मम्मी के पास हमने हॉस्पिटल में लेके गई, देन आई प्राउड माई सेल्फ। मेरा मम्मी जब व्हेन आई वाज फर्स्ट ट्रेवलिंग इन फ्लाइट में, फर्स्ट टाइम जब फ्लाइट में जर्नी किया था, मेरा मम्मी का आंखों में एक सपना देखा था मैंने कि उसको भी
फ्लाइट में चढ़ना है। तो मैंने जब बताया था उनको, तो मेरा सपना था मम्मी मरने से पहले मैं उनको एक बार होने से फ्लाइट में तो सपना पूरा हुआ। तो जब मेरे मम्मी, हमारा तो असम तिनसुकिया में है मेरा रियल घर, तो मैं जो है गुवाहाटी में रहते थे। तो मेरा एक सिस्टर है, तो सिस्टर और मेरा मम्मी को दोनों का टिकट बुक कर मम्मी को मैंने फ्लाइट में ले गया है। सो उस दिन मेरा सबसे खुशी हुई थी कि मैं मम्मा का सपना मैंने पूरा किया, सबसे बड़ा अचीवमेंट इन माई लाइफ। तो मम्मा का जो सपना था फ्लाइट में मतलब चढ़ने के लिए, 1 घंटा ही सही मैंने उसे फ्लाइट में बैठाया, क्योंकि डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी तक का 1 आवर्स का रास्ता है, ठीक है। तो मम्मी को मम्मी फ्लाइट में से हॉस्पिटल तक लाया, मैंने बोला कैसा लगा आपको फ्लाइट में। मम्मी का जो खुशियाँ थे उसका जो हैप्पीनेस उसका आँखों में दिख रहा था। सो सीरियसली वो मेरा सबसे मतलब ब्लेसिंग्स दिए थे मम्मी का, जब उसका हंसी स्माइल देखा तो ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, मम्मी का सपना पूरा करवाना। तो उसके बाद 2020 में जब दोबारा से ग्राउंड ज़ीरो हो गया और आज हम 2024 में हैं, तो 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24 इन 4 सालों में क्या हुआ? अभी ये मैं आपको बताऊंगी, ये भी बहुत बड़ा आपको ना ये मज़ेदार आने वाला है ये स्टोरी आपके लिए। मेरा जो पास है वो थोड़ा सा सैडनेस हो सकता है, लेकिन अभी लाइफ में ना हर इंसान का लाइफ में यू टर्न आता है, 360 डिग्री चेंजिंग्स है ना। तो 2020 में जब 0 हो गई तो मेरा एक सिस्टर से कांटेक्ट हुई, अब मैं पहले से रियल सिस्टर? नहीं वो अच्छा, योर कजिन सिस्टर? कजिन भी नहीं है, वो लॉन्ग एक्सटेंडेड फैमिली यू कैन से। तो उन्होंने कहा आयुन तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? मैं बोली खराब, सब गया, मम्मी भी गई, मेरा स्कूटी था वो भी गई, मेरा फिटनेस सेंटर भी गई, सब गए। तो उन्होंने कहा तुम एक काम कर दिल्ली आ जाओ। 2020 में मुझे उन्होंने कहा तुम दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में तुम्हारा पूरा अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगा शायद वो तो पहले से वहाँ है, यहाँ पे तुम आराम से 50 to 60 मतलब 50 to 1 लाख तक अर्न कर सकते हो, तो तुम बहुत स्मार्ट हो। उन्होंने मुझे थोड़ा अरे किया था, पुश किया था। तो मैंने बोला मैंने कुछ डिसाइड नहीं है। मैंने 2020 नवंबर अच्छा, ड्यूरिंग कोरोना यू ट्रैवल्ड? यस, 2020 नवंबर में मैंने दिल्ली आई और उस सिस्टर का घर में गई एंड उसके बाद थोड़ा दिन रहा। तो यहाँ पे मैं उनके साथ ही एक काम करना शुरू किया था जो वो कर रहे थे। तो बाद में मुझे एक सिस्टर मिला यहाँ पे, उनका नाम लेना चाहूँगा, उसका नाम अनु, मैं उसको अनु दी बुलाती हूँ। उसका योगा सेंटर है। अच्छा। तो मैंने उनका साथ योगा सेंटर ज्वाइन किया। फिर एक दिन दिल्ली से मैं मतलब नोएडा घूमने आई। मेरा एक सहेली रहती है यहाँ पे 2021। तो 2021 में मैं जब घूमने आई तो मुझे ये जगह बहुत अच्छा लगा। नोएडा एक पॉजिटिव वाइब सी आई थी मेरा अंदर से। ऐसा होता है ना, इंसान कभी कहीं जाता है तो आपका एक वाइब्स आता है, अच्छा लगता है। तो मुझे लगा नहीं, मुझे उधर ही शिफ्ट करना है और मैं अभी जो काम कर रही हूँ मैं उससे कंटिन्यू करूँगी। ऑनलाइन में मैं जो भी कर रही हूँ, तो मैंने दी को कहा, जिस सिस्टर से आई थी, मैं आपके साथ नहीं रहने वाले, मैं ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो जाऊँगी और मैं जो भी कर रही हूँ मैं वहीं से स्टार्ट करूँगी। तो अभी आप ग्रेटर नोएडा में आ गए, तो वो 2021 में शिफ्ट कर गए आप? 2021 में। यू आर स्टेइंग विद योर फैमिली और लाइक विद योर सिस्टर? एक्चुअली मैं हूँ और मेरा एक सिस्टर है। अच्छा, आप यहाँ रहते हैं। तो हम दोनों थे। तो मैंने 2021 में यहाँ पे शिफ्ट कर लिया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक योगा सेंटर में भी ज्वाइन किया था एंड 2022 में मैं अपना योगा सेंटर ओपन किया था यहीं पर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, यू हैव योर ओन योगा सेंटर? हाँ, 2022 में मैंने स्टार्ट किया एंड वहाँ से मुझे डांस नहीं आती, तो मुझे डांस नहीं आता। सो बाय द वे 2021 में मैं ये सब ऑलरेडी सीख चुके। मेरा जो रेकी है, एस्ट्रोलॉजर है, जो भी है मैंने 2021 से मैंने स्टार्ट किया। हाँ, तो ज़्यादा तैयारी नहीं है। एस्ट्रोलॉजर का 1 ईयर का कोर्स था, टेरो रीडर का 6 मंथ का ऐसे कुछ कोर्स था एंड रेकी का तो ओनली फॉर 21 डेज का कोर्स था। तो ये सब छोटा छोटा कोर्स था, मैंने लर्निंग करते गए साथ साथ। तो मैं इनकम भी कर रही थी, तो मैं वहीं से मैं इन्वेस्ट भी कर रही थी अपने ऊपर। हाँ, अपने ऊपर स्किल्स के ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तो आज मैं इन्वेस्ट करूँगी, व्हिच इज अ वेरी स्मार्ट मूव। हाँ, तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी तो मैं आगे फिर इसको रिफिल कर पाऊँगी ना। तो इसलिए मैं जो भी मेरा अर्न होता है, मेरा खाने के लिए मैं रखती हूँ, अपना ड्रेसअप के लिए रख देती हूँ, उसके बाद जो भी है मैं अपना लर्निंग में इन्वेस्ट कर देती हूँ। मेरा पास कुछ भी नहीं है, मैं सेविंग भी नहीं करती। क्या पता मेरा कल, मुझे नहीं पता, तो मैं इतना सेविंग क्यों करूँगी, मैं अपना लोगों के लिए काम आए। सो अभी मैं आपसे एक बहुत
इंटरेस्टिंग सा एक सवाल मुझे पूछना है, जो हम इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, वो मुझे ये पूछना है कि अभी तक, एवर सिंस यू हैव बॉर्न टिल 2024, इज़ देयर एनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ जो आपका बेस्ट मोमेंट है, सबसे खुशी देने वाला मोमेंट अब तक जो है, वो कुछ है जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे? सैडनेस तो बहुत हो गया, हाँ, बट sadness हैप्पीनेस की हो बात गई। बताइए। या एग्जैक्टली मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई थी, एंड उस दिन मैं रोई भी थी, वो खुशी का आंसू। और मैं उस दिन मेरा मम्मी को भी बहुत मिस कर रहे थे, ठीक है। व्हेन आई वाज सो गुड दिस विनर ऑफ द मिस नोएडा, और मिस नोएडा का जब मुझे विनर, तो मैं बहुत सरप्राइज थी, एंड तो इसलिए मैं ज़्यादा खुश थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं विनर निकलेंगे वहाँ से। बहुत ज़्यादा मॉडल से 25 लड़कियों में से विनर निकलना, 25 लड़कियों को आपने हराकर हाँ, वो टाइटल अपने टाइटल नाम किया, लिया। तो मिस नोएडा। मिस नोएडा। तो मेरा पास कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था, जस्ट आई हैव ओनली द कॉन्फिडेंस। सो व्हाट ऑल प्राइजेस, गिफ्ट्स यू गॉट? वहाँ से being a मैंने बहुत ही अचीव किया था, एंड उस मिस नोएडा के वजह से मुझे अचीव, मतलब ये एक Recognition स्पेशल, बहुत मिला। बहुत ही स्पेशल, मतलब आप बोल सकता है। मैं इतना खुश थे, उसने मैंने वीडियो भी बनाए थे, व्हेन आई वाज अ गॉड दिस अचीव, एंड बोल सकता है कि इसे बोलने के लिए बहुत खुद को प्राउड फील मतलब करती हूँ। नेशनल अवार्ड जो हम बोल सकता है ना इसे, और अपने मेहनत पे आपने उस चीज हाँ, को किया, किसी ने कोई राष्ट्रीय गाइडेंस सम्मान, नहीं दिया। हाँ, तो राष्ट्रीय सम्मान अवार्ड जब आपका हाथ में आए So you have that trophy with you right now? मतलब at your home? हाँ, yes, I have. You have that crown also? Yes, and So you have kept it in your locker? yes, बहुत प्यार से। exactly. So whenever you get depressed, maybe चाहे कोई छोटी रीजन से इसे, तो वो ऐसे अलमीरा ओपन करके वो क्राउन को देख के अपने आप पे प्राउड नहीं, फील करते हो? मैं मतलब अलमीरा में रखी नहीं है, मैं एकदम डायरेक्ट घुस के ना उसे ही देखूंगी। मतलब अच्छा, इस तरीके से है कि सबसे पहले आप उसी को ही इसी देखोगे। को देगी, क्योंकि वो जबकि आपके पास वो है। तो जब मैं इतना खुश थी उस दिन, मैं ऐसा लग रहा था, मैं आंखें बंद गई और मम्मी को कहा मैं ना अपना जो कि नेशनल अवार्ड को अचीव किया हूँ मैंने, एंड जो कि हमारा ख़ानदान में, हमारा जितना भी है ना, हमारा फर्स्ट टाइम है ख़ानदान, आपके पूरी फैमिली में? पूरा फैमिली में बोल सकता है, या फिर अपना रिलेटिव्स बोल सकता है, या अपने गांव में बोल सकता है। मैं वो इंसान हूँ जो नेशनल अवार्ड मुझे अचीव हुआ, एंड सो राष्ट्रीय सम्मान ये छोटा वर्ड नहीं है ना, बहुत बड़ा वर्ड है राष्ट्रीय सम्मान। तो जो मुझे मिला मिस नोएडा के वजह से, तो थैंक यू, मैं ना गॉड को बहुत ही थैंक्सफुल हूँ इसके वजह से। वो मेरा सबसे हैप्पीनेस, बड़ा अचीवमेंट है सो फार, हैप्पीनेस मोमेंट था। मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर लाइफ आपने जो किया है वो आपने खुद किया, अकेला किया है। तो सिंस आपने अपनी लाइफ में सब कुछ खुद किया है, तो आप किसको थैंक करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? मैं थैंक्स करना चाहूँ फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ, थैंक्स टू माई सेल्फ। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मैं अपने खुद खड़े थे, हमेशा मेरे साथ मैं खुद थी, और मैं ये हमेशा करती थी। मैं लोगों को भी ये बोलना चाहूँगी, ये करना चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं ना, जब आप सुबह उठकर हम क्या करते हैं, अपना मतलब ब्रशिंग वर्शिंग करके हम बाथरूम जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमने मिरर को देखना है। हम मिरर को ही देखते हैं ना मॉर्निंग, तो सबसे पहले हमें वही बोलना है कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेस्ट हूँ, एंड आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट, मेरे आगे कोई नहीं आ सकता, मैं हमेशा आगे रहूँगी। तो ये अगर हम ये बोलते हैं ना, तो अपने आप मतलब रेडी हो जाते हैं, अंदर से रेडी हो जाते हैं। तो मैं हमेशा ये फॉलो करती हूँ, एंड मेरा ये क्वालिटी बहुत अच्छा है कि मैं हमेशा लोगों को फॉरगिवनेस माफ़ कर देती हूँ। सोने से पहले मैं ये हमेशा बोलती हूँ एक गिलास पानी के साथ, जिन्होंने भी मुझे दुख दिया है या तकलीफ़ दिया है, जाने अनजाने में किसी ने मुझे हर्ट किया है, तो मैं उन सभी को माफ़ कर देती हूँ। और मैं उन सभी को माफ़ी मांगती हूँ जिन्होंने, अगर मैंने जाने अनजाने में किसी को अगर मैंने हर्ट किया है। तो आप एक गिलास पानी का क्या करते, पी जाते हो उसको? हाँ, ये सोचते हुए? यस, और उसके साथ वो खत्म हो जाता है? वो खत्म हो जाता है। अच्छा, तो मैं ये एक प्रो टिप है जो सुबह उठ के और शाम को करना है। क्या है कि सुबह अपने आप को शीशे में देखना है, हाँ, अपने आप को मोटिवेट करना है, और शाम को जो भी जैसा दिन आपका बीता है उसके बारे में सोच के, अच्छा बुरा जो भी है, वो पानी को पी लीजिए, और वो आप पानी को पी जाइए, और उसके बाद उसी के साथ सब कुछ आप
ख़त्म कर दीजिए और एक पीसफुल माइंड के साथ आप पीसफुल में सोना है। सोना है। जब आप पीसफुल माइंड के साथ सोता है ना, तो जब आप सुबह उठेंगे ना, एक नया इंसान बन के नया इंसान जागेंगे सुबह को। Right. तो ये एक नया एनर्जी। कोई चीज़ है अभी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, मतलब जो आपको पसंद नहीं है आपकी लाइफ में? यस एग्जैक्टली। क्या है? कि किसी दूसरे पर्सन के बारे, मतलब लाइफ के बारे में इंटरफेयर करना मुझे बिल्कुल पसंद है। फॉर एग्जांपल, आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, वो आपका लाइफ है, वो आपका ज़िंदगी है। हर इंसान का ना एक सबका जीने का अलग अलग तरीका होता है। हर इंसान का एक एक मोटो होता है। तो मैं कौन होती हूँ कि आपका लाइफ के बारे में बोलने वाला। तो अपना लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचे, दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचे। क्योंकि जब दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचेंगे ना, अपने बारे में कब सोचेंगे? खुद को सुधारने से ना सामने वाला अपने आप सुधर जाएंगे। किसी को सुधरने से बेहतर है कि अपने आप को सुधार लो, वो सामने वाला अपने आप सुधर जाएंगे। Absolutely. यही मेरा मोटो है और मैं कभी को सुधारना चाहती नहीं हूँ। मैं खुद सुधर जाए। अगर मैंने एक बार दो बार किसी को बता दिया, मेरे पास जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो करके आया है, मुझे पता है और मैंने उनको बताया, अगर फॉलो नहीं करा वो उसका बड़ी है। तो अपने आप को बदल दो। दूसरों को बदलने से अच्छा है अपने आप को बदलना ज़रूरी है। So on that note, Ayun, thank you so much for stepping in for the show for Gossip with Grey, and thank you for sharing all the experiences which you had faced in your life, from the brutal childhood to your young days when you struggled a lot. Now today when you are a successful human being, doing multiple businesses and healing the world with your skills and ability. I think people like you, we need more in this world. People like you are the rays of positivity, and people like you are spreading the happiness all around. And on that note, I am thankful to you and to your will, और आपका शुक्रिया अदा आप ही करती हैं बिकॉज आप ही है रिस्पॉन्सिबल अपने लिए. सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ गाइज. दैट इज द मैसेज विच आयुन वुड लाइक टू गिव. यहाँ पे बताना चाहूँगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है एंड थैंक यू सो मच टू. एंड यहाँ पे मैं एक बार बताना चाहूँगी, आज मैं भी सक्सेस नहीं हूँ. आपने कहा सक्सेस हो नहीं हूँ, क्योंकि सक्सेस नेवर एंड. सक्सेस कभी ख़त्म नहीं होता इंसान के लाइफ में. जब तक जिस दिन आपका इस शरीर से हमारा एनर्जी निकल जाए, उस दिन आप सक्सेस हो. अभी भी सक्सेस खत्म नहीं हुआ. अभी तो जर्नी है. हाँ, अभी भी प्रोसेस है. कभी सक्सेस नेवर एंड. सक्सेस कभी खत्म नहीं होता. जब आप सुबह it will end when once your life is end. तो सक्सेस हमेशा आगे ही है. हमें भागना है इसके. भागना है. यस, सक्सेस नेवर एंड. इसलिए कभी भी ये नहीं बोलना है मैं सक्सेस हूँ, क्योंकि सक्सेस तो जब होगा तब आप इस धरती से छोड़ के चले जाएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. एंड आपका जो रेस्पेक्ट, आपका लव एंड आपका केयर इज़ वंडरफुल. तो मैं भी चाहूँगी कि हर कोई ग्रेस जी के साथ जुड़े और आते रहे यहाँ पे. एंड सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर. Thank you so much, and that is what she is trying to tell everyone, that you can be a part of Gossip with Grey. And if you want me to interview you for the next episode, you are just a DM away. You can ping us on the Instagram, on the Facebook, or probably on WhatsApp, those who have my number. You can get in touch with me and be my guest. And till then, bye bye, take care, signing off. Thank you.